Hello students, today we are going to do the exercise 8.1 of class 9, question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. This is the parallelogram ABCD and this is the diagonal BD on which we have given 2 points P and Q, such that this DP is equal to BQ. These two portions of the line segments are equal. Now first part you have to prove is the triangles APB and CQB are congruent. Let's take the triangle APB and CQB. Now we have to look for the three equal pairs in it. First one is given to you, which is DP is equal to BQ. DP is equal to BQ. This is given. There is DP, BQ, and it is given to you. Next one is AD is equal to BC. These are the two opposite sides of the parallelogram, hence are equal. AD is equal to BC, opposite sides of parallelogram. Now, third pair. See, these two lines are parallel as ABCD is a parallelogram and it is the diagonal. So, see the formation of letter Z here. So, this angle and this angle forms alternate interior angles and hence are equal. Let's give the name 1 and 2 to them. Angle 1 is equal to angle 2. Reason आएगा आपका alternate interior angles. Now see, for the congruency rule we have used this side and the angle included between them. So we have used S, A, S. So triangles are congruent. APB is congruent to CQB by which rule? By SAS congruence criteria. Now we have to fill these places according to these pairs, equal pairs, corresponding pairs. Now AD is equal to BC. AD is at first and third position. So we can write B and C here at first and third position. Next one is DP is equal to BQ. DP is here, so here should be BQ. Let's replace this C and B. So what will come here? Q. Now it is here. DP is equal to BQ and angle D is equal to angle B. So in the place of angle D, we have written angle B. So first part is proved. Now second part, AP is equal to CQ. C for the corresponding parts of these congruent triangles, you have to prove that AP is equal to CQ. AP is at first and second place, and what is here at first and second place? CQ. So AP is equal to CQ by CP. So we have proved second part also. This is the proof of first part. And this is the proof of second part by CPCD. Now we have to take another two triangles AQB and CPD. These are here AQB and CPD. These two triangles. Now we need to prove that these two triangles are also third part. Now take triangle AQB and triangle CPD. Again look for three equal pairs in it. These two triangles. First one is AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram. AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram. The next one is, again we can use this. DP is equal to BQ. This is used in these triangles also and we can use in these two triangles also. Here we are also having again DP and BQ.
So BP is equal to BQ given. So this one is used. This one is used. Now another one is you have to see for the other pair, third pair, which is what we have to pair. AP is equal to BQ, but we are not taking this one. And yes, we can use these two angles. These are alternating here. You can see these two lines are parallel. This is the transversal. See the formation of Z here. So here the angle B is equal to angle D of this triangle. So I am giving the names angle 3 and 4 2. So angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angles. So which congruency rule is being used here? This side we have used, this side we have used, and the included angle we have used. So S, A, S. Again these triangles AQB is congruent to CQB by which rule? SAS congruence rule. Now fourth part, here this is the proof of the third part. Fourth part is AQ equal to CP. AQ first and second place. And what is here at first and second place? CP. So AQ and CP are equal. But what is the reason? CP corresponding. Now the last part, we have to prove that APCQ is a parallelogram. So we have already proved in second part that AP is equal to CQ. This we have proved in second part by simplicity. And similarly, in the fourth part we have proved that AQ is equal to CP. Proved in fourth part. You can see that AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, means the opposite sides of these quadrilateral are equal. So when the opposite sides are equal, then it is a parallelogram. Now the question that arises in your mind that it could be rectangle also, but in order to prove it a rectangle, you have to prove each angle is 90 degree also, and moreover rectangle is also called a parallelogram. So whenever the opposite sides of the quadrilateral are equal, we say that it is a parallelogram. So what we will write here? Opposite sides of quadrilateral APCQ are equal. Hence, it is a parallelogram. So this is the proof of the fifth part. Let's move to question number 10 now. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular. See, this is ABCD is a parallelogram. AP और CQ क्या है? Perpendiculars हैं किस पर? From vertices A and C on diagonal BD. तो ये diagonal BD है और A vertices से और C vertex से हमने perpendiculars draw किए हैं BD diagonal पर AP and CQ. These are two perpendiculars. What we have to show? First part, we have to show that these two triangles are congruent. Which triangles? ABB and CQB. Now we have to do for the three equal pairs. First one, पहले shade कर देते हैं triangle को ABB. Which one we are taking? This one. ABB. This one and CQD. Double curving CQD. ये आपको perpendicular है, ठीक है? तो आप ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो. एक पेयर तो आपको मिल गया AB is equal to CD. This side is equal to this side, and the reason is yes, opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Another one is this angle is 90 degree, where P angle is 90 degree, here Q angle is 90 degree.
इसका एंगल P और इसका एंगल Q and the reason B is each 90 degree. Now third pair आप कौन सा ले सकते हैं? थर्ड पेयर आपका हो सकता है कि ये वाला एंगल और ये ऑल्टरनेटिव पीरियड एंगल. See the formation of jet here and the opposite sides are parallel. These are parallel. See this formation. This angle and this angle forms alternative pperiod angle. We can give names 1 and 2, or we can write the full name. So I am writing 1 is equal to 2. These are the alternate interior angles. So which congruency rule is used here? We have proved that these two triangles are congruent. I am not looking for the order because it is already given in the question. यहाँ पर हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है. तो मैं यहाँ पर ऑर्डर कुछ नहीं देती हूँ कौन किसके इक्वल है. तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ उसी को कॉपी कर रही हूँ. साथ में हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, रूल बताना है कि कौन सा रूल है. तो आपने यूज किया है एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाली साइड और एक ये वाला एंगल. तो आपने 2 एंगल्स यूज किए हैं और एक साइड बीच में नहीं है, साइड अलग से है. तो AAS रूल से आपने इसे कॉन्ग्रुएंट किया. तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ एंड द सेकंड पार्ट इज सिंपल वन. व्हाट वी हैव टू प्रूव, AP is equal to CQ. So see the corresponding parts here. AP is equal to what? See the place, same place is here. Same place पर क्या है, CQ. So AP is equal to CQ. CP. So second part proved here and in the above line we have proved first part. Second part. So these are easy questions. Just we have to prove that the triangles are congruent and we have to write the CP part as they are. See question number 11 now. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AB पैरेलल टू DE, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, दोनों AB और DE. सिमिलरली BC is equal to PF, ये जो आप लाइन देख रहे हो BC is equal to EF and parallel also, BC parallel to EF respectively. Then what is this A, B, C are joined to DE and F respectively. यानी A को join किया है D के साथ, B को join किया है E के साथ और C को join किया है F के साथ. आपको क्या शो करना है? There are 6 parts. दिखने में लॉन्ग लग रहा है लेकिन 1 लाइन का ही इसका आंसर है. जब आप किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो आपके पास 2 से 3 मेथड्स हैं. एक मेथड तो ये है कि आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो तो भी आपका प्रूव हो जाता है पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो तो भी प्रूव हो जाता है पैरेललोग्राम. या फिर एक मेथड क्या है, एक ही पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों कर दो. एक ही पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों कर दो तो दूसरे पेयर की जरूरत नहीं है. उससे भी आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है. अब यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ABED जो कोऑर्डिनेट में दिख रहा है आपको ABED, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. अब हमें इसके अपोजिट साइड्स, एक अपोजिट पेयर AB इक्वल टू DE भी दिया और पैरेलल भी दिया, इक्वल और पैरेलल दोनों दिए. तो हो गया पैरेललोग्राम. आप लिखोगे AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE. दिस इज given when या फिर लिख दो because one pair of opposite sides is equal as well as parallel. Therefore it is a, क्या नाम है इसका, ABED is a पैरेललोग्राम. तो क्या बताया आपको, या तो आप अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो या एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो. और अनदर मेथड है कि आप एक अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल दोनों कर दो तो दूसरे पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे हमें AB और DE को पैरेलल और
इक्वल दोनों गिवन थे, तो एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया, इसमें दूसरे पेयर की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर आपको इसमें इसी पेयर को दो चीजें करनी पड़ेगी, इक्वल एज वेल एज पैरेलल। सिमिलरली अब आ जाओ इसमें सेकंड पार्ट पर, आपको प्रूव करना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC कहां पर है आपका, ये वाला BEFC। अगेन यू आर गिवन that BC is equal to EF and BC parallel to EF, so it is also a parallelogram। तो सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, BE parallel to CF and BC equal to EF, therefore BECF is a parallelogram। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। सिंपली अब थर्ड जो है वो प्रूव कर रहे हैं आपने AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। AD कहां पर है आपका, ये AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। सबसे पहले अभी आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि ABDE जो है दिस वन, ये जो है ये पैरेललोग्राम है, ये वाला ABDE फर्स्ट पार्ट में लिखा है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, तो आपका थर्ड पार्ट में क्या आएगा, AD पैरेलल होगा BE के, ऑल्सो AD इक्वल होगा BE के। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि AEBD जो है वो एक पैरेललोग्राम है और हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल होगी, ये इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। इसी तरह से हमने एक और फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव किया है सेकंड में, उसमें भी हम देख लेते हैं। अब हमने क्या प्रूव किया, BECF ये वाला, तो ये पेयर तो हमने यूज किया था, ये तो हमें गिवन था, इसको नहीं, दूसरा पेयर देखो। अगर आप प्रूव कर चुके हो कि ये पैरेललोग्राम है तो CF और BE पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ऑल्सो BE पैरेलल टू CF पैरेलल टू BE, CF पैरेलल टू BE एंड CF इज इक्वल टू BE। रीजन क्या है, बिकॉज BECF इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए हम अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल लिख सकते हैं। अब अपोजिट दोनों साइड्स BE के पैरेलल है, AD भी पैरेलल है BE के और CF भी पैरेलल है BE के। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों ही सेम लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये आपस में भी पैरेलल होंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो व्हाट डज इट इंप्लाई, अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो कंबाइनिंग, इसे आप 1 और 2 नाम दे सकते हो, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या होगा, AD पैरेलल टू क्या आ जाएगा, CF। AD भी BE के पैरेलल है, CF भी BE के पैरेलल है, दोनों BE के पैरेलल है, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल। सो AD पैरेलल टू CF। सिमिलरली यहाँ दोनों ही BE के इक्वल है तो आपस में भी दोनों क्या होंगी, इक्वल, एंड AD इज इक्वल टू CF। तो हमने प्रूव कर दिए 3 पार्ट। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया क्योंकि एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों गिवन थे, तो हमने कुछ भी नहीं लगाया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाई, सिर्फ जो गिवन वाला रिजल्ट था और वो डेफिनेशन लगाई है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली हमने सेकेंड पार्ट को किया, हमने गिवन पार्ट गिवन यूज करके। थर्ड पार्ट में हमने दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है उनको यूज किया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगी, इक्वल और पैरेलल। तो हमने यहाँ से क्या देखा, दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से देखा कि टू लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल टू द सेम लाइन, हेंस दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो वी गॉट द थर्ड रिजल्ट आल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव fourth part is quadrilateral ACFD is a parallelogram। फिर से देखते हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, जैसे हम फर्स्ट सेकंड में प्रूव करा है हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, क्या इसका भी कोई अपोजिट पेयर, एक ही पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों है। तो यहाँ पर अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें, इसको प्रूव करना हमने ACFD ये वाला है। तो अभी हमने प्रूव किया है कि जो AD है वो
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को यूज करके हम इसकी एक अपोजिट पेयर पैरेलल एज वेल एज इक्वल है इसका। तो AB पैरेलल टू CF एंड AB इज इक्वल टू CF प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। ये हम थर्ड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो सो वन पेयर ऑफ opposite sides AB and CF of parallelogram of quadrilateral, अभी quadrilateral बोल रहे हैं इसको, ACFD is parallel as well as equal, मैंने सिंबल बना दिया, आप यहाँ पर पूरा लिख दोगे parallel as well as equal, hence it is a, ठीक है, because लिखती हूँ यहाँ पे because hence ACFD is a parallelogram. So we have to fourth part, मतलब एक लाइन लिखे जा रहे हैं हम पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कि वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ पार्ट फिफ्थ, AC इज इक्वल टू DF। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने ACFD, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, DF। फिफ्थ आएगा AC इक्वल टू DF, रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाम की बता दो कौन सी की अपोजिट साइड्स हैं, ACFD, इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद अब लास्ट पार्ट जो है 6, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी करके दिखानी है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हुई है, जो डॉटेड लाइंस बनी है ABC एंड DEF, ये प्रूव करके दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। तीन पेयर्स ढूंढने हमने, जो कि बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन नहीं है AB is equal to DE फर्स्ट लाइन में, और ये भी गिवन है BC is equal to EF, तो AB is equal to DE भी हो गया, सेकेंड साइड भी इक्वल हो गई, BC is equal to EF, तो ये दोनों तो आपके आ जाएंगे गिवन। और थर्ड जो है AC is equal to DF, फिफ्थ पार्ट में आपने प्रूव किया AC is equal to DF, तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल कर दी, AB is equal to DE, BC is equal to EF, ये दोनों गिवन थे, और ये आप फिफ्थ पार्ट में प्रूव कर चुके हो AC is equal to DF, तो ये प्रूव इन फिफ्थ पार्ट। ठीक है, दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिख देना है कि कौन से पार्ट में आपने प्रूव किया है। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by which rule, by SSSU। This is the question number 11. Now question number 12, ABCD is a trapezium, here I have drawn a trapezium ABCD, और एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, तो यहाँ पर कौन सा पैरेलल गिवन है, AB पैरेलल टू CD, ये वाला, और ये AB पैरेलल टू BC है। ठीक है, ये पैरेलल है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AB और BC, ये वाले दूसरा पेयर जो है नॉन पैरेलल है, बट ये इक्वल गिवन है, these two are equal। आपको क्या शो करना है, फोर पार्ट्स गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, और एंगल C को प्रूव करना है एंगल D के इक्वल, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, और दो ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD वो हम बनाएंगे इसको ज्वाइन करके। ठीक है, AC को ज्वाइन करेंगे तभी बनेगा ABC ट्रायंगल बनेगा, AB बाद में बनाते हैं इसको BD को ज्वाइन करके, और डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले हमें इसे ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम बनाना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इट अ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, C से एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, जो AD के पैरेलल। अब ये दोनों तो पैरेलल थी नहीं, तो आप इसके AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और उसको आप कोई भी नाम दे दो, सपोज वी आर सेइंग दैट इट इज E, तो हमने नाम दे दिया, वी आर ड्राइंग CE पैरेलल टू AD, और ये B को ज्वाइन AB प्रोड्यूस्ड को मिल रही है E पर, इसको नाम दे दो।
एक लाइन हमने ड्रॉ करी सी से इसके पैरेलल और ए बी को प्रोड्यूस कर दिया और वो उसको ई पर मिल गई। उससे क्या हुआ, हमारा ये जो ए बी ए इस लाइन को हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दिया। क्या लिखा है हमने, थ्रू सी, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डीए, डीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, व्हिच लीड्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, जो ए बी प्रोड्यूस्ड को कहाँ पर मिल गई है, ई पर मिल गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अब पहले तो ये अब आपकी फिगर देखो, ये तो पैरेलल थी, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए की बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के, और ई सी हमने जो बनाई है वो ए डी के पैरेलल बनाई है। इसीलिए अब हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। और वी नो दैट मैं एंगल्स को नाम दे दूंगी, इसमें इजी रहेगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं नाम दे रही हूँ उनको, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 जो मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, these are equal and the reason is opposite angles of parallelogram। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, अब यहाँ से ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ से देखो पहले AD इक्वल टू BC हमें गिवन है, we are given AD is equal to BC, और साथ में हमें क्या गिवन है, अब पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हमने क्या AD is equal to BC आपको गिवन है। और दूसरा क्या है, इस पूरी फिगर को आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो, तो क्या होगा, AD किसके इक्वल होगा, CE के, AD किसके इक्वल हो जाएगा, CE के। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये दोनों AD BC के भी इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों AD के इक्वल है, इट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, CE के। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे 1 और 2 यूजिंग 1 and 2, अब देखिए ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो गई, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो गई, तो इस ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये साइड्स इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। तो हमने कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी यूज की है। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट में है। तो रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इस पार्ट को यहीं कर देती हूँ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, हमने पहले लिखा एंगल 1 और एंगल 2 को अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होंगे, फिर मैंने लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यहाँ से कैसे प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, उसमें देखो अगर मैं इसको लेती हूँ एंगल 4, तो 3 प्लस 4 का सम कितना है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहा है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक इन दोनों से रिजल्ट कंबाइन करके लिख लो कि 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 को रिप्लेस कर सकती हूँ। देखो 1 एंगल भी 2 के इक्वल है और एंगल 3 भी किसके इक्वल है, एंगल 2 के। इट मींस एंगल 1 और 3 इक्वल है। तो यहाँ पर मैं 3 को रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल 1 से। सबसे पहले क्या किया, दीज आर अपोजिट एंगल्स, हेंस आर इक्वल। फिर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये भी इक्वल है। अब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, इसका मतलब 1 और 3 क्या हो गए, इक्वल। और 3 और 4 मैंने लीनियर पेयर में लिया है। अब मैं इसको एंगल 5 ले रही हूँ। अब क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 180 डिग्री है, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल। तो ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। अब इसका सम भी 180 डिग्री है, 1 और 4 का, 1 और 5
तो मैंने 1 और 2 इक्वेशंस पहले लिखी थी, 3 और 4 ले लो। अगर मैं यूज करती हूँ यूजिंग या फ्रॉम 3 एंड 4, क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। ये दोनों इक्वल है इक्वेशन। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। यहाँ से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है, तो क्या प्रूव हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और एंगल 4 और 5 क्या थे, एंगल ए और एंगल बी। तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसको आपको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा कि क्या किया है, यहाँ पर क्या यूज किया है, क्योंकि दो से ज्यादा मतलब बहुत 2-4 स्टेप्स किए हैं, तो इनको आपने देखना है। पहले ये दोनों इक्वल किए हैं, ये दोनों इक्वल किए हैं, तो इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं, तो इसको आपको एक बार दोबारा देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब सेकेंड पार्ट A इज इक्वल टू B हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C और एंगल D को इक्वल करने के लिए मैं इनको भी नाम दे देती हूँ, बस यही एंगल रह गया 6। तो मैं लिखूंगी 1 + 5 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से 4 और 6 भी कोइंटीरियर। अगर लाइंस पैरेलल हो तो जो अंदर एंगल बनते हैं वो कोइंटीरियर होते हैं। तो 1 और 5 भी कोइंटीरियर है, 4 और 6 भी कोइंटीरियर है। तो एंगल 4 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या आ जाएंगे, कोइंटीरियर। ठीक है, अब दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल 1 + 5 एंगल 4 + 6 के इक्वल है। ठीक है, अभी हमने लास्ट पार्ट में प्रूव किया है, फर्स्ट पार्ट में, कि एंगल 4 और 5 तो क्या है, इक्वल। अगर 4 और 5 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल किए हैं, क्योंकि एंगल 4 और 5 इक्वल है, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 1 क्या है, D, और एंगल 6 क्या है, C। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल C और D भी इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। सबसे पहले तो ट्राइंगल्स बना लें, हमारे पास ये इसमें प्रॉपर गिवन नहीं है, हमें क्या चाहिए, ABC। तो ABC इनको मिला लो इसी, तो आपको मिल जाएगी ABC ट्राइंगल। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल कौन सी चाहिए आपको, BAD। तो BAD ये नहीं, तो आप इसको मिला लो, बन गई BAD ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 पेयर्स लेंगे ट्राइंगल्स, को आपको पता है कौन सी लेनी है, और सिंबॉलिक फॉर्म भी आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि दोनों में AB कॉमन है, एक पेयर तो आप यही ले लो, AB कॉमन। ठीक है, और दूसरा इसका ABC, देखो पूरा एंगल कौन सा है, ABC में एंगल A पूरा आ रहा है, B पूरा नहीं आ रहा, तो इसका एंगल A, यानी इसको हम 5 नाम दिया होगा हमने। और इसका BAD में हमारा कौन सा आ रहा है, सॉरी BAD में हमारा एंगल 5 आ रहा है, और ABC में हमारा B पूरा 4। तो इनका एक एंगल इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 2 पेयर्स हो गए हमारे। अब थर्ड पेयर रह गया। थर्ड पेयर हमें इक्वल गिवन है, इसका हमें क्या गिवन है, इसका AD और इसका BC इक्वल गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही था ये। ठीक है, तो थर्ड हो गया AD इज इक्वल टू BC गिवन। अब 3 पेयर्स तो हो गए, और सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। सिर्फ हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, रूल लिखना है। ठीक है, और रूल कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या साइड यूज किया है, एक तो हमने ये यूज किया है, एक हमने ये एंगल यूज किया है, एंगल A और B। एक ट्राइंगल को देखो आपने AB कॉमन लिया था, एक एंगल A और B यूज किया था, और एक AD और BC, SAS। तो हमारा कौन से रूल से आ गया, S से S रूल से। तो हमारे यहाँ पर थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव। अब लास्ट पार्ट रह गया, तो सीपी से आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल AC इज इक्वल
लिखा आपने डायगोनल AC is equal to BD, और ये कैसे प्रूव किया? CP से। सो फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। बाकी सभी पार्ट सिंपल है, ठीक है। थर्ड पार्ट में एक तो आपको 2 बार कंस्ट्रक्शन किए आपने, एक ये तो कंस्ट्रक्शन आपने की है नॉर्मली ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन को, और ये आपने इन ट्रायंगल्स को फॉर्म करने के लिए। और इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है वही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो with this our exercise 8.1 is complete. Thanks for watching.